Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. How are you all? This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Social Studies, Divisional Public School, Chicha, Vatni. Hope you are quite well, physically and mentally. I feel glad to be with you. Okay, let's start our today's discussion on today's topic. Our today's topic is atmosphere. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 एटमॉस्फेयर का मुतालिया कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में हम एटमॉस्फेयर, regular gases, variable gases or pollutants, nitrogen and oxygen, importance of nitrogen, importance of oxygen, variable gases, importance of carbon dioxide, importance of ozone, pollution, water vapors. और कल हमने द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की जो 4 अक़साम हैं वो पढ़ी थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। Weather is the whole condition of temperature, atmospheric pressure, wind speed, air humidity and precipitation, rain and snow of a particular place at a particular time. Weather changes with time, while climate is the average weather condition of a particular area that persists there for a long time. The only difference between weather and climate is that weather is the atmospheric condition of some place of at particular time, while climate is the atmospheric condition of particular place during a long time. Dear students, मौसम से मुराद क्या है? मौसम किसे कहते हैं? मौसम से मुराद किसी मुकाम के ख़ास वक्त के दर्जा हरारत, हवा के दबाव, हवा की स्पीड या रफ्तार, हवा की ह्यूमिडिटी या रतूबत एंड प्रेसिपिटेशन, रेन स्नो यानी रेज़श यानी बारिश और बर्फबारी की मजमूई कैफियत को कहते हैं। Weather changes with time, while climate is the average weather condition of a particular area. मौसम जो है वक्त के साथ चेंज होता रहता है। आबोहवा किसी जगह की एक लॉन्ग टाइम या एक तवील अरसे की औसत मजमूई मौसमी कैफियत को कहते हैं। The only difference between weather and climate, मौसम और आबोहवा में सिर्फ इतना फर्क है, is that weather is the atmospheric condition कि मौसम किसी मुकाम के ख़ास वक्त की फ़ज़ाई कैफियत का नाम है, पर्टिकुलर प्लेस during a
اور آب و ہوا جو ہے یہ ڈیورنگ اے لانگ ٹائم کسی جگہ کی، کسی مقام کی عمومی موسمی کیفیت کا نام ہے. To fulfill their needs. In 2009, an international conference was held in Copenhagen, capital of Denmark, on the issue of climate changes. Many countries of the world participated in this conference. Many decisions were taken to reduce the release of carbon dioxide, to control the trend of increasing temperature on Earth. A specific amount of carbon dioxide for life on Earth, but the quantity of carbon dioxide is rapidly increasing in the world. Increase in the quantity of carbon dioxide and other dangerous gases in the atmosphere are due to the smoke releasing during the use of energy resources as coal, natural gas, and oil, etc. Carbon dioxide and other gases absorb heat coming from the earth. Dear students, इंसानी सरगर्मियों की वजह से पूरे अर्थ की आबो हवा तब्दील हो रही है. इंसान अपनी ज़रूरत के लिए रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स बनाता है. आबो हवा में ये चेंज के जो मुमकिन खतरा देखते हुए डेनमार्क के दारकूमत कोपेनहेगन में इसी इशू पर एक यानी क्लाइमेट चेंज के इशू पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें दुनिया के बहुत से ममालिक शिरकत की. मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस. दुनिया के बहुत से ममालिक ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की. कॉन्फ्रेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज में कमी के हवाले से अहम फैसले किए गए ताकि ज़मीन पर दर्जा हरारत के बढ़ते हुए रुझान को रोका जा सके. पूरा अर्ज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 की एक खास हद जिंदगी के लिए ज़रूरी है. यानी आपको पिछले मैंने टॉपिक्स में पढ़ाया था, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को गौर से सुना है और तसल्सल से सुना है तो आपको ये बात याद होगी कि मैंने बताया था कि पूरा हवाई में या एटमॉस्फेयर में वैसे तो बहुत सी गैसों का मजमूआ है जो पूरा हवाई है, लेकिन उसमें दो गैसें मैंने पढ़ाया था कि जो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं. वो दो गैसें कौन सी हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस पढ़ाया था कि सबसे भारी गैस है और इसके अलावा इसमें इंसानी ज़िंदगी के लिए यानी इसकी एक मुनासिब मिकदार जो है वो ज़रूरी है. लेकिन अगर इसमें तेज़ी से इजाफा होता रहा, वो इजाफा कैसे होता है? जो ज़राए तवानाई हैं यानी कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जो है, ये जो अपना धुआं निकालते हैं, जो धुआं छोड़ते हैं, उन धुएं से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की और दूसरी अदर जो नुकसानदेह डेंजरस गैसेज हैं उनकी तादाद या उनकी मिकदार जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है.
इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा होता है। अर्थ में पूरा अर्थ में टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और उससे फिर ये होता है कि यहाँ पे फिर बहुत से लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है, बहुत से मसाइल होते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी एक ख़ास हद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन देखने में आया है कि पिछले 200 साल में इसमें 25% जो है इसमें इजाफा हुआ है। Carbon dioxide and other gases absorb heat coming from the earth. ऑक्साइड और दूसरी गैसें जमीन से खारिज होने वाली हरारत को जज़ब कर लेती हैं। It increases the temperature of the atmosphere, which is harmful for the life on earth. In this way, the climate of the earth is affected and it is changing when volcanism occurs. Dust particles and gases enter air in a large amount. It results in changing the climate. कार्बन डाइऑक्साइड से जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसका दर्जा हरारत इंक्रीज होता है, तो वो इंसानी ज़िंदगी के लिए मैंने बताया कि डेंजरस हो सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है, नुकसानदेह हो सकता है। और इससे ना सिर्फ ये इंसान और इससे हमारे इससे आगे पूरा अर्थ की ज़मीन की आबो हवा भी बहुत मुतासिर होती है, ठीक है, उसमें तब्दीली नुमा हो रही है। और इसी तरह फिर आगे है कि जब वॉल्केनिज्म अकर कि जब वॉल्केनोज फटते हैं तो उस वक्त भी हम कह सकते हैं कि उससे भी बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार और गैसेस एक बड़ी क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन चेंजिंग द क्लाइमेट, इससे आबो हवा में तब्दीली आती है, आबो हवा चेंज हो जाती है और फिर वो ज़ाहिर है कोई अच्छे असरात नहीं रहती। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे और अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहती हूँ। स्टे होम, सेव लाइफ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।